SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के खाते में तीसरा ओलंपिक मेडल। पीवी सिंधु ने मेडल पक्का कर दिया है, ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। पीवी सिंधु ने अपने नाम किया। रियो के बाद सिंधु का ये दूसरा ओलंपिक मेडल है, तो 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट और खिलाड़ी बन चुकी हैं। प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है परिवार की तरफ से। पिता क्या कह रहे हैं, सुनिए प्लीज। What did you speak to her and what she said? What happened? Yesterday, I told you have given your best, and no problem, but concentrate today, and just think that you are giving me a gift and on the court. So I'm very happy. Was her morale down yesterday after No, morale in the sense, of course, everybody will cry. She had tears in her eyes, but good that she has recovered and come back, and she won today. వరల్డ్ నెంబర్ 1 తోటి ఓడిపోయిన తర్వాత నిజంగానే మళ్ళీ కమ్బ్యాక్ అవడం అనేది చాలా కష్టమైన పని. బట్ ఈ రోజు అపోనెంట్ ని చూసుకుంటే ఆమె బెటర్ రికార్డ్ ఉంది సింధు మీద, దో దట్ షీ హాస్ మోర్ విన్స్. బట్ ఈ వాల్టి గేమ్ వెళ్ళేటప్పుడు వాట్ వాస్ ద మైండ్ సెట్? అంటే వెళ్ళేటప్పుడు నేను ఒకటే చెప్పాను, చాలా ఫోకస్గా బాడీ లాంగ్వేజ్ బాగా పెట్టుకుని వెళ్ళాలి తల్లి. ఎందుకంటే దట్ విల్ బికాస్ ఐ టోల్డ్ హర్ దట్ ఎస్టర్డే అండ్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే హీ బింగ్జావ్ హ్యాస్ ప్లేడ్ 3 games. It is not easy for a player to continue again the same rhythm. Plus pace kuda penchamanna, endukante if you don't increase the pace, He Bingjiao is also a tricky player like Taizu. So that's how she lost in Indian Super Series. Though she was leading 2016, she lost 23-21 and 21-18. So keeping that in mind, I have sent a video also of He Bingjiao she played in. And of course, coach and even Sindhu was also analyzed in the morning, and I'm very happy today. వరల్డ్ నెంబర్ 1 అయినప్పుడు ఆవిడ చెప్తూ సింధు ఎక్కడైతే ఫ్లాస్ ఉన్నాయో అవి క్లీన్ గా గమనించి ఆడారు అనే ఒక స్ట్రాటజీ తోటి వాళ్ళు వచ్చారని చెప్పారు. బట్ ఈ రోజు మీరు చెప్పినట్టుగా నిన్న 3 గేమ్లు ఆడిన తర్వాత ఈ రోజు ఆడడం అంత ఈజీ కాదు. బట్ హౌ డస్ షీ లుక్ ఇన్ ద కోర్ట్ సార్ ఓవరాల్? overall different strategy while playing? That's No, overall she was very aggressive on court, and I told her just keep attacking, especially towards her back, because when he plays first stroke, he plays at the forehand, immediately she leaves that place and covers the other 3 places. So now what I said is keep playing repeated strokes. Then while watching, because I had a physio there on phone, then I was messaging her that now the inward shots are more successful for Sindhu. After 1-2 rallies, then she can go for the inward attack. Yeah, especially a 17th point rally, the way she smashed. Yeah. And she couldn't reply. So you might have watched. Yes, sir. People who have watched. So she has more attacked on inward, especially towards her backside. That too smashes. She was successful, and we could get the game. As a father, तो जाहिर सी बात है परिवार बहुत खुश है, पिता बहुत खुश। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिंधु को कहा था कि ये तुम्हारा तोहफा होगा मेरे लिए वहाँ से, अगर तुम आज अच्छा प्रदर्शन करोगी। कल जाहिर सी बात है थोड़ा निराश ज़रूर थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके बाद वहाँ से रिकवर किया पीवी सिंधु ने। हमारे साथ अभिन्न श्याम गुप्ता जुड़ गए हैं जो पूर्व ओलंपियन हैं। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। सिंधु ने कई रिकॉर्ड भी बना दिए हैं, पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक इस जीत के साथ। जी सिंधु निश्चित ही पहले उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 मेडल लिए, करंट वर्ल्ड चैंपियन है, और दोबारा ओलंपिक में 2 मेडल देकर उन्होंने बहुत भारत का नाम रोशन किया है। और आज भी मैच काफी क्लोज चल रहा था, लेकिन आज वो बहुत पॉजिटिव खेली एंड में, और लास्ट में उनके जो क्रॉस कोर्ट हाफ स्मैशेस गए डाउन द लाइन, वो चीनी अपोनेंट बी जाओ को समझ भी नहीं आ रहे थे। आज शुरुआत से आपको लग रहा था कि आज शुरुआत से मैच में बहुत अग्रेसिव थी, उनका बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल फर्क थी आज, और वो अग्रेसिवनेस उनके गेम में दिखाई दी आज? क्या बदलाव था आज? क्या ये इस तरह का आकलन करना सही होगा? नहीं, बिल्कुल आज वो काफी फोकस थी, एक पॉइंट के लिए बहुत सजग थी, और आप लास्ट मोमेंट तक देखिए वो एकदम हर पॉइंट के लिए काफी फोकस और काफी स्ट्रेटेजिक थी, और बिल्कुल भी आज उन्होंने नेगेटिव नहीं दिया और काफी कंसंट्रेटेड माइंड से खेली।
और उनके चेहरे पे दिख रहा था कि वो आज मेडल लेके रहेंगे। हमारे साथ शिवेंद्र कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, अगर आप भी कोई सवाल लेना चाहें तो आप भी सीधे सवाल ले सकते हैं। अभिनय भाई, आप खुद ओलंपियन रहे हैं और मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि एक ओलंपिक मेडल जीतने के बाद दूसरे ओलंपिक मेडल के लिए खुद को मोटिवेट करना, ये कितना बड़ा प्रोसेस है जो उन्होंने किया पीवी सिंधु ने आज? देखिए, जब आदमी को कुछ मिल जाता है तो आदमी रिलैक्स हो जाता है, वो सोचता है अरे मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। जब पिछली बार उन्होंने 2016 में ओलंपिक मेडल लिया था तो थोड़ा सा आदमी में वो आता है, लेकिन सिंधु ने इस स्ट्रेटेजी को काफी पीछे छोड़ दिया। वो अभी भी काफी फोकस्ड रही हर मैच के लिए। उनके इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लिया और अभी भी उनके पास बहुत टाइम है। अगले ओलंपिक्स में भी वो मेरे ख्याल से अच्छा करेंगी और हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि पीवी सिंधु जैसी प्लेयर ने हमको दोबारा ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाया और मेडल दिलाया सभी बैडमिंटन वासियों के लिए। जी अबिन जी, एक और सवाल ये भी कि आप जिस तरह से सिंधु पहले खेल रही थी, उम्मीद ये थी कि वो सिल्वर जीत सकती हैं या गोल्ड जीत सकती हैं, लेकिन वहाँ उतना अच्छा प्रदर्शन ना करने के बाद फिर अपने आप को मोटिवेट करना कि मुझे इस गेम में अपना सब कुछ देना है, वो कितना मुश्किल होता है? क्योंकि उनके पिताजी भी बता रहे थे कि कैसे आंसू थे उनकी आंखों में कल, लेकिन वहां से उन्होंने अपने आप को रिकवर किया और फिर इतना अच्छा गेम खेला, तो ये कितना मुश्किल प्रोसेस होता है? नहीं, जैसे कोई खिलाड़ी जैसे हारता है तो उसके बाद उसके अंदर बहुत एक नेगेटिविटी आ जाती है और कल के मैच से वो काफी निराश हुई क्योंकि उन्होंने उसको पहले हराया भी हुआ था और पहला गेम अगर वो कल जीत गई होती तो निश्चित ही सेकेंड गेम में वो हॉवी रहती, डोमिनेटिंग रहती और हमारे लिए फाइनल के लिए गोल्ड मेडल जीतती। लेकिन उस निराशा को उन्होंने छोड़ के दोबारा अगले दिन इस मैच के लिए उन्होंने अपने को प्रिपेयर किया और काफी मेंटल टफनेस दिखाई और मेंटली अलर्ट रहे। ये सब चीजें उनको दिखाती हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनकी जो वर्ल्ड चैंपियन की एक खासियत होती है वो उनके अंदर आया है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए TV9 भारतवर्ष से अभिन श्याम गुप्ता। हमारे साथ शिवेंद्र लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र, जाहिर सी बात है परिवार की पहली प्रतिक्रिया हमने देखी, हम सब बहुत उत्साहित हैं। पीवी सिंधु के लिए भी एक बहुत खास पल, ये बहुत मुश्किल, क्योंकि आप रिकवर करा उन्होंने वहाँ से जहाँ वो हारी और फिर उन्होंने रिकवर करने के बाद आज इतना अच्छा प्रदर्शन किया। आज लग रहा था कि वो डू और डाई वाली सिचुएशन की तरह खेल रही थी कि नहीं आज मुझे हर हाल में जीतना है, कैसा लगा? बिल्कुल लगा, और वो उसका फर्क आपने देखा। मैं जिस तरीके से कोर्ट कोन में उन्होंने अपनी अपोनेंट को जिस तरह से परेशान किया, जिस तरह से फ्रस्ट्रेट किया, ये दिख रहा था कि वो आज किस तरह से फोकस्ड हैं, जो अभिन्न भी कह रहे थे अभी बात। और वो जो आपने शब्द यूज किया डू और डाई, उनको ये दिख रहा था कि ये वो मैच है। इस ओलंपिक में पहले मैच जीत के वो यहाँ तक पहुंची थी, लेकिन उनको ये पता था कि ये वो मैच है जो मैच मुझे एक और ओलंपिक मेडल दिलाएगा और उसके बाद मैं भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन सकती हूँ जिसने 2 मेडल जीता हो। तो वो जो कमिटमेंट थी वो अलग थी। और जो बात उनके पिता ने कही, ये सिर्फ बेटी, सुमेरा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ बेटी और पिता का रिश्ता नहीं है, ये 2 खिलाड़ियों का भी रिश्ता है। पीवी रमन्ना भारत के लिए वॉलीबॉल खेल चुके हैं, 1986 में वो एशियन गेम्स में वो मेडलिस्ट रहे हैं। और पीवी सिंधु का जो सफर शुरू हुआ था बैडमिंटन खेलने का, वो शुरू भी दरअसल इस तरह से हुआ था जब वो अपने पिता के साथ वॉलीबॉल कोर्ट पर जाती थीं और वहीं वॉलीबॉल कोर्ट के ठीक पीछे बैडमिंटन कोर्ट था जहां लगभग 7-8 साल की उम्र में पीवी सिंधु का सफर शुरू हुआ। तो आप ये जो रिश्ता है पिता पुत्री का, वो सिर्फ पिता बेटी का नहीं, एक 2 खिलाड़ियों का भी रिश्ता है और 2 चैंपियन खिलाड़ियों का रिश्ता है, जिसकी वजह से आज दूसरा मेडल है, आज सिंधु के पास इतिहास है और तीसरी महिला खिलाड़ी भारत के लिए मेडल लेके आई हैं। जी हाँ, और उम्मीद ये है कि वो ऐसा ही प्रदर्शन और आगे जारी रखेंगे क्योंकि अब उनके पास समय है, फिटनेस है, वो आगे भी और ओलंपिक्स में हमारे लिए मेडल ला सकती हैं। लेकिन आज जिस तरह का एनालिसिस उनके पिता कर रहे थे उससे समझ में आ रहा था कि वो किस तरह का सपोर्ट देते हैं पीवी सिंधु को। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम बातचीत करने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।